Good morning, dear kids and parents. Here I am back with a new topic, with a new video of dividing numbers. So, my dear students, yesterday we had read about how we play with numbers while using the operation of division. Means, कल हमने सीखा था कि किस तरह हम नंबर्स के साथ खेल सकते हैं और डिवाइड का ऑपरेशन यूज कर सकते हैं while playing with numbers. So my dear friends, in the sequences of subtopics, yesterday we had read the topic dividing by multiples of 10, 100 and 1000. So now our today's topic is dividing without a remainder. So my dear kids, today we will learn how to divide a number to not get any remainder in that division. So let's learn how to divide the number. So here you can able to see the second lesson or the second topic of dividing numbers, that is dividing without a remainder. Means we will going to divide the numbers not to leaving any remainder. Means the divide is going to completely solve. Now let us read the paragraph, and then after we are going to apply the steps whichever included in this method. So let us read this paragraph. We can apply the long division method to divide 4 digits and 5 digits number. My dear students, first thing I want to tell you that you had read about the smaller divisions. Means you already read in previous classes that how to divide 2 digit and 3 digit numbers. Now in this topic we are going to learn what we have to divide is the 4 digit, 5 digit and 6 digit numbers. So be careful while solving or while reading this paragraph. Now let us start. So as this line is saying that कि इस मेथड में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम 4 डिजिट या 5 डिजिट के नंबर्स को सॉल्व करेंगे. ओके, सिंस division is the opposite of multiplication. What is? Since division is the opposite of multiplication. कह रहा है कि क्योंकि division जो होता है वो multiplication का बिल्कुल opposite होता है. अब ये कैसे होता है? मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम multiply करते हैं तो numbers increase करते हैं. ओके, While multiplying anything, जब भी आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जाते हैं. जितने डिजिट्स आप मल्टीप्लाई करते जाओगे उतने डिजिट्स इंक्रीज होते जाएंगे. बट जब डिवीज़न करते हैं तो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं. दैट मीन्स दे आर गेटिंग डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स. वो क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. Okay, we can use multiplication tables to find out how many times the divisor goes into the dividend. Now this line is very important. Just read it carefully. इस लाइन में कह रहा है कि हम multiplication table का यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि किस तरह एक डिवाइजर how many times हम टेबल पढ़ते हैं तो जितनी बार वो डिवाइजर में डिविडेंड वाले नंबर्स आते हैं उतने टाइम्स हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. ओके, मीन्स अगर 2 के टेबल में 10 आता है तो कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है. तो हम ये बोलते हैं कि 10 यहाँ पे हमारा डिविडेंड है, 2 हमारा डिवाइजर है और जो 5 आया मीन्स कितने टाइम्स आया 2 के टेबल में वो हमारा क्वोशेंट हो जाता है. ओके, सो वी हैव टू लर्न टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो. हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए क्या चाहिए?
टेबल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स टू वेरीफाई or check the quotient when the remainder is 0, we use this formula. Now my dear friends, this line is also very important as the line is saying कि जब हम अपना डिवाइड फिनिश कर लेते हैं और ये देखते हैं कि हम डिवाइड किए और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं. कैसे? Here is the formula. अब अभी आपको मैं समझा दूंगी कि कैसे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. ओके, जब रिमाइंडर 0 होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंड. दैट मीन्स जो हमारा डिवाइजर है मीन्स जो हमारा 2 है और कोशेंट दैट मीन्स जितने टाइम्स हमने ले गया, मतलब 2 इंटू 5. हमारा क्वेश्चन क्या आया था अभी जब हम 10 को डिवाइड कर रहे थे, तो 5 ही आया था ना. सो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू वॉट, 10. 2 5s are 10. ओके, नाउ कम एंड सी दिस एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल देयर इज अ 5-digit number that is 13,104 which is going to divide with 36. So now see it carefully how we are going to divide with the long division method. Now as you can see, this is the method called long division method. इस method को क्या कहते हैं, long division method कहते हैं. Now just focus on this dividend. As you can see, here is already written that the number which is written in mid is डिविडेंड और विच हैव 5 digit इज कॉल्ड डिविडेंड. जो नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है, और जो नंबर छोटे होते हैं वो डिवाइजर होते हैं. कभी कभी कोशेंट भी हो सकते हैं. ओके, ज़रूरी नहीं है कि डिवाइजर हमेशा 2 ही डिजिट का हो, ये 3 digit 4 digit 5 digit का भी हो सकता है. ओके, बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द डिवाइजर इज ऑलवेज स्मॉलर दैन डिविडेंड. डिवाइजर क्या होगा, डिविडेंड से हमेशा छोटा होगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व. अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है. नाउ सी, हियर इज द 36. आई नो यू डोंट लर्न द टेबल ऑफ 36. मुझे पता है कि आपको 36 का टेबल नहीं याद होगा. जस्ट यूज द इजी मल्टीप्लीकेशन मेथड. अगर आपको मल्टीप्लाई आता होगा ना तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे. हाउ? नाउ एज यू कैन सी हियर इज द फर्स्ट डिजिट इज 1 and you know it very well that 1 is very much smaller than 36, right? Then you have to concentrate on 2 digits, that is 1 and 3, 13. Now this number is also smaller than 36. The 13 is smaller than 36. So we have to take 3 digits together, that is 131. अब आप देखेंगे ना कि जब 131 आपको मिलेगा तो ये नंबर बन जाएगा 131. नाउ इट इज ग्रेटर देन 36. अब क्या हो गया, ये 36 से बड़ा हो गया. अब आपको क्या करना है, 36 के मल्टीप्लीकेशंस लिखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 36 into 1 is equal to 36. It is very easy. 36 into 2. Now tell me what is 36 into 2? That is 72. 36 into 2 is equal to 72. So still the number is greater than 72. अभी भी 72 131 के बराबर नहीं आया है. और what we have to do is हमको इसके बराबर या थोड़ा सा छोटा इससे, अब हम 72 नहीं ले सकते, हम 36 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे. और हमने ये पाया कि जब हम 36 से जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें क्या नंबर मिलेगा, 108. नाउ वी हैव टू राइट इट हियर बिलो द नंबर 131. हम 131 के नीचे 36 से 3 का मल्टीप्लाई. ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. अगर हम 36 का 4 से भी मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, ठीक है, जब हम 36 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 144 मिलेगा. ओके, सो द 144 इज बिगर देन 131. आप चाहें तो
मल्टीप्लाई एक बार में लिख सकते हैं पूरा 10 तक। ओके, जब आप 10 तक मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे तो वो बन जाएगा 36 का टेबल। एंड देन फ्रॉम देयर यू विल कॉपी इट ईजिली। आप वहाँ से क्या करेंगे, ईजिली वो चीज़ कॉपी कर सकते हैं। बस आपको नंबर देखना होगा कि कौन सा नंबर किस नंबर से छोटा है, और हम क्या करेंगे, कितने टाइम्स काउंट करेंगे कि कितने टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स जा रहा है, 6 टाइम्स जा रहा है। ओके, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगी, बट बिफोर दैट यू हैव टू लुक हियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, 36 का मल्टीप्लाई जब 4 से किया गया तो 144 मिल गया, वो क्या हो गया 131 से ज़्यादा हो गया, तो हम 3 टाइम्स ही ले जाएंगे स्मॉलर। ओके, सो 36 3s are 108। नाउ सब्सट्रैक्ट दिस डिवीजन, वी गेट 23। ओके, जब आप ये करेंगे तो 23 और नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 0। यू हैव टू नोट डाउन इन बिसाइड 23। आपको 23 के जस्ट बगल में वो 0 क्या करना है, नोट करना है। ओके, जब आप नोट करेंगे तो जो डिजिट बनेगी वो बनेगी 230। नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट, हमने 4 तक टेबल लिख चुका है, 36 4 जा 144। नाउ अब आपको ये देखना है कि टेबल में 230 आता है कि नहीं। इफ इट इज सो देन गो थ्रू इट, अदरवाइज जस्ट मूव फॉरवर्ड। 230 नहीं आता है, आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, आप देखिए 5 से क्या आता है, नहीं आता है, 6 से मल्टीप्लाई करिए, टेबल ने 6 है, दैट मीन्स 5 जो 36 5 जो होगा ना वो छोटा होगा 216 से पक्का। ओके, सो वी मूविंग ऑनवर्ड्स, हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमने 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 216 मिला। ओके, फिर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड वी डू द सेम प्रोसेस अगेन अगेन अगेन। ओके, नाउ एट लास्ट द लास्ट नंबर इज 14। जब आप 230 में से 216 माइनस करेंगे तो 14 रिमाइंडर बचेगा, और आपके पास एक लास्ट डिजिट बची है 4। आप 4 को यहाँ नोट करेंगे एंड देन यू विल सी दैट इन द टेबल ऑफ 36 144 इज कमिंग 4 टाइम्स। 36 के टेबल में 144 जो नंबर है वो 4 टाइम्स आता है, एंड यू विल राइट इट हियर एंड सब्सट्रैक्ट इट इजली एंड द रिमाइंडर इज 0। आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, एंड यू कैन एबल टू सी द 13,104 इज टोटली डिवाइडेड विथ 36, विच इज व्हाट द टाइम्स, कितने टाइम्स जाता है 36 के टेबल में 364 टाइम्स क्या आता है 13,104। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू solve the division of long method. So my dear kids, here I have taken example 9126, which is of 4-digit example, and it is going to divide with 26. Okay, now we have to verify also. हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, डिवाइजर into quotient is equal to dividend। अभी मैं इसको क्लियरली लिखूंगी। ओके, अभी मैंने बस आपको रफली बताया है कि यही हमारा वेरिफिकेशन है कि हमने क्वेश्चन अपना सही किया है कि नहीं। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग मैंने अभी बताया कि इफ द नंबर इज बिगर यू हैव टू मल्टीप्लाई द टेबल। आपको क्या करना होगा, जो गिवन नंबर है उसके टेबल बनाने होंगे। ओके, अगर आपको 2022 तक टेबल याद है इट इज़ वेरी गुड, बट आई नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, सो वी हैव टू मेक टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ 26। किसका टेबल बनाना है 26 का। हमने यहाँ पहले से इसको लिख करके रखा है बट मल्टीप्लाई नहीं किया है। नाउ अब मैं क्या करूँगी, आपके सामने ही इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी और आप देखिएगा कितना ईजिली हम लोग टेबल बना लेंगे। ओके, सो यू नो 26 1s are 26, you all were know very well. Now as you can see 26 is going to multiply with 2, so first of all you have to multiply 2 with 6, that is on 1's position, so 6 2s are 12, 2 and what is 1 is carry. Okay, now multiply 2 2s are 4 plus 1 5. Okay, now
वन मोर इजी मेथड आई विल टेल यू, बट एट लास्ट आई विल टेल यू. ओके, पहले अभी हम लोग ऐसे करेंगे. 6 3s are 18, 8, 1 carry, 3 2s are 6 and 1 7, 6 4s are 24, 4 2 carry, 4 2s are 8, 9 10, 104 बन गया. 5 6 are 30, 0 3 carry, 5 2s are 10, 11 12 13, 6 6 are 36, 6 3 carry, 6 2 are 12, 13 14 15, 7 6 are 42, 4 carry, 7 2 are 14, 14 plus 4 18, 8 6 are 48, 8 4 carry, 8 2s are 16, 16 plus 4 20, 9 6 are 54, 4 5 carry, 9 2s are 18, 18 plus 5 18, 19 20 21 22 23, and 26 into 10. You know very well how to multiply with multiple of 10. Just multiply 26 with 1, that is 26, and put the 0, the number of 0 you have to put here. आपको सिखाया था मैंने ऐसे ना? Yes. So my dear friends, here I have written the table. Now I am going to solve by long method of division. So first of all, you have to write it like this. Either you can write like this, or I am going to write like this. It is more comfortable for me. Okay, मेरे लिए ये बहुत comfortable है. That's why I am going to write like this. Here we either here or here. कहीं पे भी आप क्या लिखेंगे? quotient लिख सकते हैं, और बीच में हमारा क्या होता है? dividend. Okay, now as you can see, the 9 is very much smaller than 26, and it is not going to come in the table of 26. 9 कभी भी हमारे 26 के टेबल में नहीं आएगा. So what we have to do? We have to take the digit 91. That means हमको ये भी डिजिट लेना होगा और ये भी डिजिट लेना होगा एक साथ. Then जब एक साथ लेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 91 पढ़ेंगे. Now see here, क्या 26 के टेबल में 91 आता है? नहीं आता है. 26 के टेबल में क्या आता है? 78 आता है, 52 आता है, 26 आता है, 104 आता है. अब 104 इज द बिगेस्ट, 91 से बड़ा हो गया ना. तो वॉट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक वॉट? 78. ओके, तो हम यहाँ क्या लेंगे? 78 लेंगे. पुट द साइन ऑफ माइनस. डोंट फॉरगेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, साइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है. नाउ यू नो हाउ टू रीग्रुप द नंबर्स बिफोर सब्सट्रैक्टिंग. आपको पहले भी मैंने पढ़ा चुका है कि कैसे हम नंबर्स को रीग्रुप करते हैं. सो दिस इज़ 1, और 1 क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा, और 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 3. करेक्ट. एंड देन व्हाट इज द नंबर? 9 बिकम्स 8. 8 बन जाएगा, एंड 8 में से 7 जाएगा तो क्या होगा? 1 बचेगा. राइट. तो नंबर क्या बन गया? 13. नाउ अब आप बताइए, क्या 13 आता है 26 के टेबल में? नहीं आता है. सो व्हाट वी हैव टू डू? जस्ट नोट डाउन द नंबर 2. हम यहाँ क्या करेंगे? नंबर 2 को लिख लेंगे. इट कंप्लीटेड. कॉल 132. क्या बन जाएगा? 132. अब आप देखिए कि क्या इस टेबल में 132 आता है? 104, 130, 100. यस, व्हाट कम्स? 130. कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स. ओके, 78 कितने टाइम्स आया था? 3 टाइम्स. तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं भूल गई थी. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 26 के टेबल में 3 टाइम्स क्या आया? 78. अब 132 तो आता नहीं है. क्या आता है? 130 आता है. कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स. सो हम पहले यहाँ लिखेंगे 5, एंड फिर यहाँ लिखेंगे 130. ओके, सब्सट्रैक्ट इट. 2 minus 0, that is 2. And what about 3? It becomes 3 minus 3, 0. 1 minus 1, 0. Okay, now one number is remain. क्या बचा है हमारा? 6. We have to note down. What is the number? 26. And you know that 26 ones are 26. So subtract it. Okay, now this is the long method division. Now I am going to check. Okay, so here our divisor क्या हमारा? 26.
डिविडेंड क्या है हमारा, क्या है 9126, ओके। और कोशेंट TIENT, कोशेंट इज इक्वल टू 351। ना वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर हमारा ये सॉल्यूशन सही होगा ना, तो जो हमारा फॉर्मूला है डिवाइजर इनटू कोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंड, ओके। अब हमें देखना है कि हमारा डिविडेंड क्या है 9126। हम डिवाइजर की वैल्यू रखेंगे और कोशेंट की वैल्यू रखेंगे, ओके। सिर्फ डिवाइजर और कोशेंट की वैल्यू लिखेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद 9126 आता है कि नहीं। हम जानते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लंबा होगा, बट वी हैव टू चेक इट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। डिवाइजर इज 26 and quotient is 351. Now we have to multiply with the popular column method. हम किस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 0 3 is carry, 6 3 जा 18, 19 20 and 21. So write down 21. As you all know, ones place को छोड़ते हैं, 0 लिखते हैं। 2 1 जा 2, 5 2 जा 2, 5 जा 10, 0 1 is carry, 2 3 जा 6 and 1 7. Add it 6 2 1 9. What is the dividend? 9126. हमने मल्टीप्लाई करने के बाद क्या पाया 9126। सो हमने ये जो डिवीजन का सॉल्यूशन किया था ये बिल्कुल सही था, ओके। एंड दिस इज द वे हाउ टू वेरीफाई द डिवीजन। हमने ये मेथड सीख लिया कि हम कैसे अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, ओके। सो माय डियर किड्स, लाइक ऑलवेज, here is a question for you. You have to take the screenshot of the question or note down in your notebook and try to do it. Also verify your answer. ओके आप इसको सॉल्व करिए और अपने आंसर को वेरीफाई भी करिए, ओके। आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू और आपको डिवाइडिंग विदाउट द रिमाइंडर जरूर समझ में आया होगा। हे किड्स, नाउ वॉच दिस वीडियो केयरफुली। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो नेक्स्ट टाइम। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।